प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जेई मेंस 2023 जनवरी सेशन, मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेई मेन 2023 में मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स आए हैं, इनकी मैंने एक सीरीज तैयार करी है टॉपिक वाइज, और आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन दिस टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, आई हैव लिस्टेड ऑल दोस प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन हैव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ सिंगल चैप्टर एट वन प्लेस। तो आप सभी स्टूडेंट जो जेई मेन का अप्रैल सेशन देने वाले हैं, या ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ इन क्लास 11th एंड दे आर मूविंग टू क्लास 12th नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर काफ़ी प्रॉफिटेबल होने जा रहा है। एंड टुडे आई हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इसके आगे मैथ्स के और भी जो टॉपिक्स हैं, सबके ऊपर एक एक करके मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप में से जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो। फाइन, I am starting. So dear student, first problem we have where this quadratic equation is given and we are looking for largest element in the set capital S. What we have in capital X? Capital S, x plus lambda. So as according to the problem, we have to calculate maximum value of x plus lambda. X plus lambda can be how much bigger? Keeping in mind x is integer. x हमारा integer है, उसको ध्यान में रखते हुए we have to calculate values of x and lambda, and finally we have to answer greatest value of x plus lambda. Easily कर सकते हैं। तो next slide में I am going to solve this problem. Fine. So this is our problem, and since x is given integer, so lambda is also an integer. सोचो हाउ, देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, 3 आपका इंटीजर है, तो लैम्डा को अभी मरता क्या ना करता इंटीजर होना पड़ेगा, तभी ये सब मिलके 0 ला पाएंगे। एंड अब जो मैं लॉजिक यूज कर रहा हूं, रूट्स आर रियल, so capital D greater than or equal to 0, that means 4 minus 4 times mod of lambda minus 3 greater than equal to 0. It is going to give me mod over lambda minus 3 less than or equal to 1. So lambda minus 3 in between minus 1 and 1. So I am getting lambda in between 2 and 4. And since lambda is integer, so lambda can be what? 2, 3, 4. Lambda is integer. So between 2 and 4, we will take lambda equal to 2, lambda equal to 3, lambda equal to 4. Now we have to find x plus lambda. So for values of lambda, now I am going to calculate x. Lambda is equal to 2 implies that this equation mod x square minus 2 times mod x plus 1 equal to 0, which means mod x minus 1 whole square equal to 0. So it is going to give me x equal to plus minus 1. Lambda equal to 3. This will give mod x whole square minus 2 times mod x equal to 0. So the values of x I will get
x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 एंड lambda is equal to 4, it is giving mod x square minus 2 times mod x plus 1 equal to 0. So at the last x equal to plus minus 1, x equal to plus minus 1. Fine. So प्रॉब्लम में निकालना गया, प्रॉब्लम में बोला गया लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट कैपिटल एस, और कैपिटल एस में है क्या, x प्लस लैम्डा. सो वी आर लुकिंग फॉर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस लैम्डा. For there are 3 values of lambda, and corresponding to 3 values of lambda there are values of x. So now easily you can decide what should be the maximum value of x plus lambda, and that is possible when lambda is 3 and x is 2. X equal to 2, lambda equal to 3, it will make 5. So the largest value will be 5. अब lambda की बाकी values और x की values का सेट बना के कैलकुलेट करना. द मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग व्हेन x इज प्लस 2 एंड लैम्डा इज 3. सो फॉर दिस प्रॉब्लम आवर आंसर इज 5. आंसर इज 5. ओके, दैट यू कैन सी हियर. फाइन. चलिए, नाउ आई हैव माय सेकंड प्रॉब्लम. ये कब आया था, ये आया था 24th Jan की शिफ्ट 2 में. फाइन. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Number of real solution of the given equation, and I hope everyone is aware of such kind of problem. What to do? Identity का use, x square plus 1 by x square, x plus 1 by x, they can be transformed into each other. सबको आता होगा. Once again I am saying, वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम को पहले खुद से सॉल्व करिए. जब नहीं बनेगा then you will check how I have done. आंसर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम हैज आंसर 1. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इस प्रॉब्लम को कर रहा हूं. सो वी हैव 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. वन कैन राइट इट एज एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x plus 1 by x plus 5 equal to 0. Let x plus 1 by x is equal to t. So now 3 times t square minus 2t plus 5 equal to 0. It is making 3t square minus 2t minus 1 equal to 0. Now we can factorize. So 3t square minus 3t plus t minus 1 equal to 0. 3t common, t minus 1 plus 1 times t minus 1. So we have factors 3t plus 1, t minus 1 equal to 0. So the values of t minus 1 by 3 and t is equal to 1. Now t is x plus 1 by x, so we are getting x plus 1 by x minus 1 by 3 and x plus 1 by x equal to 1. Now students, यहां पे आके मैक्सिमम आप कंफ्यूज हो जाते हैं. कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. नाउ सिंपल लॉजिक इज देयर. सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू -2. ये कब होता है? व्हेन नंबर इज पॉजिटिव. और ये कब होता है? व्हेन नंबर इज नेगेटिव. तो जिसको जिसको ये लॉजिक पता है कि x plus 1 by x either more than 2 or less than -2, they can answer easily this problem. We have got x plus 1 by x minus 1 by 3, not possible. We have got x plus 1 by x equal to 1, not possible. So हमसे पूछा गया था number of solution. What's the answer? Answer is clear cut 0. Answer is option first, which is 0. Is it? बहुत सिंपल प्रॉब्लम था. नेक्स्ट. चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखिए. देखने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा.
फर्स्ट साइट में जो इंप्रेशन है कि क्या पूछ लिया गया, बड़ा टफ प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम में सारा खेल लॉग का है. देयर इज अ सेट कैपिटल एस हैविंग अल्फा वेयर अल्फा is satisfying this equation. Alpha is satisfying this equation which is in terms of log. Once we have alpha, then putting alpha here, we have to calculate value of beta. So सारा खेल प्रॉब्लम में किसका है? अल्फा का. कि एक बार अल्फा निकल आएगा, देन उसको यहां पे पुट करके we can calculate the answer. Okay? चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो यस, वी हैव लॉग ओवर 9 is to the power 2 alpha minus 4 plus 13 minus log over 5 by 2 times 3 raised to the power 2 alpha minus 4 plus 1 is equal to 2. Now, when can you use the property of log here? Log m minus log n. So it is log over 9 raised to the power 2 alpha minus 4 plus 13 divided by 5 by 2 times 3 raised to the power 2 alpha minus 4 plus 1 is equal to 2. Log has base 2. Now I am going to remove log. So 9 raised to the power 2 alpha minus 4 plus 13 divided by 5 by 2 times 3 raised to the power 2 alpha minus 4 plus 1 and here I will have 4. मैंने log को remove कर दिया. So now 9 raised to the power 2 alpha minus 4 plus 13 is equal to 10 times 3 raised to the power 2 alpha minus 4 plus 4. It can be written 3 raised to the power 2 alpha minus 4 whole square I can say t square plus 13 is equal to 10t plus 4. So now t square minus 10t plus 9 equal to 0. T minus 1, t minus 9 equal to 0. I am getting t equal to 1 and 9. t मैंने किसको लिया था? 3 raised to the power 2 alpha minus 4. So 2 alpha minus 4 is equal to 0 and 2. 1 को लिख लिया 3 की पावर 0, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर. So in this way alpha is coming. एक बार alpha 2 आ रहा है और एक बार alpha 3 आ रहा है. I have got the two values of alpha. I have got two values of alpha. Alpha is equal to 2 and 3. Alpha is equal to 2 and 3. Fine. Now, problem is, if this quadratic equation has real roots, then we are looking for beta. Quadratic के roots real होते हैं, उसकी condition होती है discriminant greater than equal to 0. So, अगर अब हम इस quadratic को simplify कर लें, then using the condition of discriminant, हमारा आंसर निकल आएगा. बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस टर्म. व्हाट इज रिटन हियर? सिग्मा अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू एस. एस में क्या था? अल्फा था और अल्फा मेरे आ गए 2 and 3. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा अल्फा? सिग्मा अल्फा का मीनिंग हुआ अल्फा की वैल्यूज का सम, और अल्फा कितना आ गया? 2 and 3. तो सिग्मा अल्फा विल बी हाउ मच? 5. सो माय क्वाड्रेटिक इज x square minus, now sigma alpha is 5, 5 square 25 into 2, 50 हो गया. Then alpha plus 1 whole square into beta. तो ये जो आपका सिग्मा है ये केवल इतने पे है, alpha plus 1 whole square. I have got alpha 2 and 3. So what will I do? मैं alpha की जगह 2 रखूंगा तो 2 plus 1 का स्क्वायर इट विल मेक 9. जब मैं 3 को रखूंगा तो 3 plus 1 का स्क्वायर इट विल मेक 16. और सिग्मा लगा हुआ है तो 9 plus 16 25. So I am getting 25 beta equal to 0.
So now this quadratic equation I have, x square minus 50x plus 25 beta equal to 0. Now student, I am leaving this problem for you. After it you can easily do. अब आपको बोला गया इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल. This equation has roots real. So now using the condition of discriminant, you can do it. Okay. Now roots are real. So capital D greater than or equal to 0. Capital D greater than or equal to 0. कर लो, करना है तो b square minus 4ac. So 2500 minus 100. So beta will come less than or equal to 25. That you can check. Roots are real. So this quadratic will have discriminant greater than or equal to 0 using the condition beta less than or equal to 25. So what is the maximum value of beta? Answer is 25. Is it? So problem का आंसर हमारा क्या हो गया? देखो पीछे की स्लाइड में आंसर था. आंसर is 25. Okay. Now I'm coming to the next. Chalo. This is our next problem. This quadratic equation is given. What is it? X square plus 60 raised to the power 1 by 4. X plus a equal to 0. It has roots alpha and beta. Given to us alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is equal to minus 30. Now we are looking for product of all values of a. वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्वाड्रेटिक इज गिवन टू मी. सो अल्फा प्लस बीटा minus times 60 raised to the power 1 by 4 alpha into beta, it's equal to a. Now alpha to the power 4 plus beta to the power 4 given minus 30. Okay, I can write it as alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square beta square. Further it will be written alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, and it is 2 times alpha beta whole square. Now alpha plus beta minus 60 raised to the power 1 by 4. So here it will come 60 raised to the power 1 by 2 minus 2 alpha beta, and here 2a square equal to minus 30 and ye square. Fine. So now I have 60 plus 4a square minus 4a times 60 raised to the power half is equal to minus 30. It is 4a square minus 4 times 60 raised to the power 1 by 2 into a plus 90 equal to 0. The student try to get the problem. Problem बहुत आसान है. Now we have a quadratic in terms of a. Now we have a new quadratic in terms of a. और ये जो नई क्वाड्रेटिक आई है, यहां से कितनी a की वैल्यूज मिलेंगी? यहां से हमें a की 2 वैल्यूज मिलेंगी. प्रॉब्लम में पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a. तो यहां से जो a की 2 वैल्यूज आएंगी उसका हमें प्रोडक्ट बताना है. जो 2 वैल्यूज a की आएंगी उसका हमें प्रोडक्ट बताना है. तो मैं यहां पे अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर दूं फॉर दिस क्वाड्रेटिक, if I talk about product of roots, for this quadratic if I talk about product of roots, तो it will be automatically. अच्छा देखो मेरी एक कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी. यहाँ पे 4a स्क्वायर आएगा, माइनस 2a स्क्वायर था. सो ये मैंने गड़बड़ करी है, ये 2a स्क्वायर होगा. ओके, दिस विल बी 2a स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ a. वी वांट देयर प्रोडक्ट. तो सिंपल है, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दूं, आई विल हैव माय आंसर.
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है, c अपॉन a, which is here 45. That's my answer. Is it? कि स्टार्टिंग में देख के लग रहा था कि पावर 1/4 आ गया, कैसे बनेगा, क्या होगा, नथिंग स्पेशल वॉज हियर, अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम. फाइन. नेक्स्ट. चलो, अब ये वाला जो प्रॉब्लम आया, इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन. क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा, और सेकेंड क्वाड्रेटिक रूट्स alpha gamma. Then we are looking for a new quadratic having roots 3 alpha by beta, 4 alpha by gamma. So क्या क्या रिलेशन बनेंगे? This quadratic from first quadratic has roots alpha beta, so alpha plus beta 31/14 and alpha into beta 3 lambda by 14. Second quadratic has roots alpha and gamma, so alpha plus gamma 53/35 and alpha into gamma 4 lambda by 35. Fine. Now students, इस प्रॉब्लम में मेरे पास भी केवल और केवल एक ही तरीका है, दैट इज कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं. हाउ मेनी वेरिएबल वी हैव? अल्फा बीटा लैम्डा, अल्फा गामा लैम्डा, तो ओवरऑल कितने वेरिएबल? 4. एंड हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव? 4. तो यस, अल्फा गामा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा लैम्डा, everything can be found. Once we have all the values, putting it here, we can calculate the roots and the new quadratic equation. So I am leaving this problem for you, कि from these equation get the value of alpha, get the value of beta, get the value of gamma. That you have to do. Okay, and it can be done. Alpha, beta, lambda, gamma, total 4 variable and 4 equations are there. So yes, solving these 4 equations, alpha, beta, gamma, everything can be found. And once we have alpha, beta, gamma, we will be able to calculate these values. और ये आपको पता लग गया तो easily you can find which quadratic will be the answer. पिछले स्लाइड में आंसर दिया हुआ था, आंसर इज ऑप्शन 1. तो यस, दिस इज अवर आंसर विच यू कैन फाइंड. ओके, नेक्स्ट. चलिए, नाउ दिस वन, देयर आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन and they have common real root. There are two quadratic equation and they have common real root. I hope इसके लिए फॉर्मूला होता है जो सबको याद होगा. क्या होता है फॉर्मूला? a1x² plus b1x plus c1 equal to 0, a2x² plus b2x plus c2 equal to 0. Have only one common real root. For this we have condition a1 c2. For this we have condition a1 c2 minus a2 c1 whole square is equal to a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1. This condition we can apply. So in the problem, equations given are x square minus 5ax plus 1 equal to 0, x square minus ax minus 5 equal to 0.
they have a common real root. So using the condition, I will get a1c2 minus a2c1. So minus 5 minus 1 whole square is equal to a1b2 minus a2b1 minus 5 है तो प्लस 5 है इंटू b1c2 25 है माइनस b2c1 प्लस a. So 36 is equal to 4a into 26 है, a square is equal to 9 upon 26. A square is equal to 9 upon 26. फाइन. प्रॉब्लम में बोला गया है द वैल्यू ऑफ ए, ये गिवन है. सो इन प्लेस ऑफ ए 3 अपॉन रूट 2 बीटा का स्क्वायर. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट बीटा. Now you can calculate beta. So how much beta? It is 2 beta is equal to 26. Beta is coming 13. So our answer is 13. Fine. 9 will get cancelled. We will have 2 beta is equal to 26. So our answer beta is equal to 13. Clear? Fine. इजी प्रॉब्लम था. चलिए नेक्स्ट आइए. नाउ दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रियल रूट्स. प्रॉब्लम कब आया था? 31 जैन शिफ्ट 1. इस प्रॉब्लम को देख के सभी के अंदर से एक आवाज आ रही होगी, क्या? स्क्वायरिंग. यस, इस तरह की प्रॉब्लम का एक ही तरीका होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. बट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या स्क्वायरिंग इजी है? ये क्वाड्रेटिक का रूट है, ये क्वाड्रेटिक का रूट है, ये क्वाड्रेटिक का रूट है. व्हेन यू विल गो फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, बहुत ज्यादा हेक्टिक बन जाएगा. जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्वाड्रेटिक आएंगी और फिर क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट रूट के अंदर आएगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन. तो इस तरह के प्रॉब्लम में एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम को देखो, कुछ दिमाग लगाओ कि क्या प्रॉब्लम एनी हाउ सिंप्लीफाई हो सकती है. हाँ बोलो. वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई करिए. जो क्वाड्रेटिक रूट के अंदर रखी हुई हैं इनको ध्यान से देखो, क्या ये फैक्टराइज हो रही हैं? और अगर हो रही हैं, डू दे हैव एनी कॉमन फैक्टर? करो ट्राई. I am doing the solution. Fine. So the first quadratic is clearly x minus 1, x minus 3. Second one, x minus 3, x plus 3. And quadratic on the right hand side, it can also be factorized. One factor is clearly x minus 3. One factor is x minus 3 and check. Next it is 4x minus 2. check karo. Quadratic on the right hand side inside the square root can be written x minus 3, 4x minus 2. So now we have a common factor. रूट के अंदर x minus 3, रूट के अंदर x minus 3 we have everywhere. It can be taken common. It can be taken common. So root over x minus 3 into root over x minus 1 plus root over x plus 3 root over 4x minus 2. स्टूडेंट्स, अब यहां पे भी आप एक गलती कर जाते हो. क्या हमें रूट ओवर एक्स माइनस 3 रूट ओवर एक्स माइनस 3 कैंसिल कर देना चाहिए? आंसर है यस.
we can cancel, but x equal to 3 will also be a solution. x अगर 3 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, x अगर 3 हो जाए ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 वैलिड होता है. सो वी कैन कैंसल अंडर द कंडीशन x इक्वल टू 3 विल बी अ सॉल्यूशन. सो मैंने इसको, या आप इसको ऐसा समझो, हमने सबको लेफ्ट राइट एक तरफ कर लिया. ओके, नाउ फ्रॉम हियर रूट ओवर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और रूट ओवर एक्स माइनस 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू रूट ओवर 4x minus 2. So from here clearly we have x equal to 3. Clearly we have x equal to 3. Fine, x equal to 3. अब आते हैं इस पे. इसको करने का एक ही तरीका होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो रूट ओवर एक्स माइनस 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 4x minus 2 whole square. So now it is x minus 1 plus x plus 3 plus 2 times root over x minus 1 x plus 3 is equal to 4x minus 2. करते हैं इसको पूरा. So 2 times root over x square plus 3x minus x, so plus 2x minus 3. यहां से हमें क्या मिलेगा, 2x plus 2. इस साइड आके 2x minus 4. चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन. इट इज 2x plus 2. 2 को मैंने उधर भेज दिया तो 2x minus. Once again squaring. So now 4 times x square plus 2x minus 3 is equal to 4x square plus 16 minus 16x. Okay, 4x square plus 16 minus 16x. बस last step. 4x square will get cancelled. We have 8x minus 12 and here 16 minus 16x. तो I am getting 8x minus 16x इधर आ जाएगा, 24x हो गया, और माइनस का 12 और 16, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 28 हो गया, और इधर हमारे पास था 8x माइनस 24x. तो 24x is equal to 28. So x is equal to 7 by 6. X is equal to 7 by 6. We will get 24x is equal to 28. So x is equal to 7 by 6. Is it? But dear student, रुक जाना, अभी रुक जाना. x की 2 वैल्यूज आ गई है तो तुरंत माइंड में आता है देयर आर द 2 सॉल्यूशंस. इस प्रॉब्लम की पूरी कैलकुलेशन में आपने एक गलत काम किया है. गलत काम से मेरा मतलब है कि आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है, दैट इज व्हाट, स्क्वायरिंग. एंड व्हेन एवर वी डू द स्क्वायरिंग सम एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मे कम. तो जब भी स्क्वायरिंग करिए आने वाले आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन से चेक करिए. इट मे और मे नॉट सेटिस्फाई. आई हैव गॉट x इक्वल टू 7 by 6 और मेरी इक्वेशन क्या थी, रूट ओवर एक्स माइनस 1 रूट ओवर एक्स प्लस 3 रूट ओवर 4x माइनस 2. तो जो 7 by 6 मुझे मिला है, तो यस इसको एक बार हम लोगों को पुट करके देखना चाहिए. जो x इक्वल टू 3 मिला इट्स ओके, क्योंकि इसको निकालने में कोई स्क्वायरिंग नहीं करी थी, बट इसको निकालने में हम लोग ने स्क्वायरिंग का हेल्प लिया है. तो लेट्स चेक, एक बार इसको यहाँ पे पुट करके देखो. When you will put 7 by 6 here,
7/6 को यहां पे रखोगे तो ये कितना देगा, 1/6 रूट के अंदर, और 7/6 को तुम यहां पे रखोगे तो ये आपको कितना देगा, 7/6 प्लस 3, इट विल गिव 25/6। तो यहाँ पे तुमने रखा तो यहाँ से आया 1/6 रूट के अंदर, और यहाँ पे तुमने 7/6 को रखा तो हमें आया 25/6 रूट के अंदर। तो कॉमन अपॉन में √6 आ गया, इधर बचा 1 + 5, तो 6/√6, लेफ्ट हमारा है √6, राइट में आओ। 7/6 को यहाँ पे पुट करो, पुटिंग 7/6 हियर, it will become 28/6, 28/6 minus 2, that is 28 minus 12/6, 28 minus 12 by upon 6, that will make, जल्दी बोलो जल्दी, 28 minus 2, it will make 16/6, जिसका रूट कितना आएगा, 4/√6। लेफ्ट में हम लोगों ने क्या था, लेफ्ट में हमारे पास है 6/√6, और राइट कितनी आ रही है, 4/√6। दिस वैल्यू ऑफ x विल नॉट बी टेकन, दिस वैल्यू ऑफ x विल नॉट बी टेकन। सो आंसर की बात करूं तो आंसर केवल और केवल एक ही वैल्यू है, x = 3। व्हाट इज आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी। चेक करो पीछे जो स्लाइड थी हमारी उसमें क्या था आंसर, आंसर इज गिवन ऑप्शन डी। So getting it? कि एग्जाम में आप बैठे थे, आपने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, यू हैव गॉट द 2 वैल्यूज ऑफ x, लेकिन अगर फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर इज ओनली 1 वैल्यू। तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए, इफ यू आर डूइंग द स्क्वायरिंग सम एक्स्ट्रा आंसर मे कम, तो वॉट एवर वी हैव गॉट उसको एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में चेक जरूर करो। ये प्रॉब्लम कई लोगों के लिए एग्जाम में गुगली साबित हुआ था। चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक्सपोनेंशियल की e⁴x, e⁴3x, e⁴2x, e⁴x। तो लग रहा है कि एक कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। इस प्रॉब्लम का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफी डराने वाला है कि अगर हम e⁴x को t ले लेंगे तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना विल नॉट बी एन इजी टास्क। तो इस तरह के प्रॉब्लम में कुछ दिमाग में सोचना पड़ता है कि अगर मैं डायरेक्टली e⁴x को t ले लूं तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जिसको सॉल्व करना एक मुश्किल काम है। तो क्या कुछ तिकड़म लगा के सिंप्लीफाई किया जा सकता है? यस, I have divided the whole equation by e⁻²x। मैंने पूरे इक्वेशन को e⁻²x से डिवाइड कर दिया। I have divided the whole equation by e⁻²x। Now e⁻²x plus 1/e⁻²x, मैंने नेगेटिव पावर का अपॉन में कर लिया, प्लस 8 टाइम्स e⁻x minus 1/e⁻x plus 13 = 0। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बनाने वालों ने भी इसी चीज को ध्यान में रख के प्रॉब्लम बनाई है। नोइंगली दे हैव गिवन कॉमन फैक्टर 8। नाउ अभी भी हो सकता है प्रॉब्लम आपको लग रहा हो कि आपके लेवल से बाहर जा रही है, नहीं। दिस एक काम करते हैं, e⁻x को t ले लेते हैं। अब जो नया इक्वेशन आएगा उसको देख के आपको कुछ अपनापन का फील आएगा। सो t² + 1/t² प्लस 8 टाइम्स t - 1/t plus 13 = 0। Now everyone can solve it. The first term can be written t minus t minus 1/t whole square plus 2 plus 8 times t minus 1/t plus 13 = 0। थोड़ी देर के लिए मैंने t minus 1/t को u का नाम दे दिया, तो u² plus 8u plus 15 = 0।
t माइनस 1/t को मैंने u का नाम दे दिया, तो u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 15 इक्वल टू 0. नाउ देयर आर टू फैक्टर्स, u प्लस 5, u प्लस 3. u हम लोगों ने किसको लिया है? t माइनस 1/t को. सो t माइनस 1/t इज इक्वल टू -5 एंड t माइनस 1/t इज इक्वल टू -3. Now this we have to solve. So यहां से क्वाड्रेटिक बन गई t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से क्वाड्रेटिक आ गई t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0. इज इट? t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0. नो डाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से t की वैल्यू नहीं आने वाली है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज निकलेगी. सो फ्रॉम हियर t इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac. सो 25 प्लस 4 29/2. From here the value of t -3 plus minus b square minus 4ac, that is 9 plus 4 13/2. फाइन. स्टूडेंट अभी काम खत्म नहीं हुआ, याद रखना. आपने t किसको लिया? e की पावर x को, एंड e टू द पावर x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म. तो अब ये जो t के वैल्यूज निकली हैं, इफ दे आर पॉजिटिव then answer is 4. out of these values of t अगर कोई वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो वो हमें डिस्कार्ड करनी होगी, क्योंकि हमने t किसको लिया? e की पावर x को. सो आउट ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ t हम केवल वही वैल्यू लेंगे विच आर पॉजिटिव. इफ आई कंसीडर माइनस साइन द होल विल बी नेगेटिव. नहीं ले सकते क्योंकि t किसके बराबर है? e टू द पावर x के बराबर है. इफ आई टेक प्लस तो -5 प्लस √29, यस इट इज पॉजिटिव. तो यहां से t की केवल एक वैल्यू मिलेगी. यहां पे आइए, दोनों माइनस लेने पे इट विल बी डिस्कार्डेड, क्योंकि t नेगेटिव हो जाएगा और t हमारा e की पावर x है. e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव. बट इफ आई कंसीडर प्लस -3 प्लस √13, इट इज क्लियरली पॉजिटिव, इट विल बी टेकन. सो ओनली टू वैल्यूज ऑफ t आर वर्किंग. t की हमें केवल दो वैल्यूज मिल रही हैं, और t की अगर दो वैल्यूज मिल रही हैं तो e की पावर x की दो वैल्यूज होंगी. तो फाइनली x की वैल्यूज कितनी हुई? अच्छा, इसमें भी अभी एक आपसे उसने क्या पूछा था? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये भी बताना था. सॉल्यूशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये भी बताना था. सो अभी कैलकुलेशन का एक स्टेप बचा हुआ है जो मैं यहां पे कर रहा हूं. देखो हमें क्या क्या मिला. वी हैव गॉट t is equal to -5 plus √29/2, which is the value of e की power x. फाइन. अब यहां से अगर आप थोड़ी सी अकल लगाओ, देखो √29 कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग. तो -5 प्लस √29 विल बी इन डेसिमल अपॉन 2 विल बी इन डेसिमल. तो e की पावर x किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है. e की पावर 0 1 होता है. अगर e की पावर x डेसिमल में आ रहा है तो 100% x विल बी नेगेटिव. 100% x विल बी नेगेटिव. आर यू गेटिंग मी? Similarly, the other value of t, it is -3 plus √13 divided by 2. Now, √13 will be 3 point something. So 3 point something minus 3, decimal upon 2, decimal. तो t मेरा डेसिमल में आ रहा है. तो e की पावर x की जो वैल्यू आ रही है, e की पावर x की जो वैल्यू आ रही है, यहां से जो e की पावर x की वैल्यू आ रही है वो मैं लिख दे रहा हूं. e की पावर x की जो वैल्यू आ रही है मैं लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा डेसिमल,
और अगर e की पावर x मेरा डेसिमल में आ रहा है तो x विल बी निगेटिव. सो मुझे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों वैल्यूज क्या है? निगेटिव. सो व्हाट विल बी माय आंसर? सॉरी, नॉट दिस वन. माय आंसर विल बी two solution and both are negative. Two solutions and both are negative. The answer is first option. Two solutions and both are negative. Yes. प्रॉब्लम कह सकते हैं कि थोड़ा ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था कि जिसमें पहले ये सोचना कि e की पावर 2x से डिवाइड करके देन e की पावर x को t लेके वी कैन हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज इट ओके? चलो अगला प्रॉब्लम. नाउ आई होप ये प्रॉब्लम सबको मुझे बना के दिखाना चाहिए. करिए. एवरीवन कैन डू दिस प्रॉब्लम. इफ यू कैन connect these two figure you can easily do. Root 3 plus root 2 and root 3 minus root 2, do they have any connection? Yes, they are conjugate of each other, so this problem can be done. चलो जल्दी से करते हैं. root 3 plus root 2 and root 3 minus root 2, they are what? They are conjugate of each other. They are conjugate of each other. So the given equation is what? Root 3 plus root 2 raised to the power x square minus 4 plus 1 upon root 3 plus root 2 raised to the power x square minus 4 is equal to 10. Let the first term root 3 plus root 2 raised to the power x square minus 4 is equal to t. So I have t plus 1 by t is equal to 10. T plus 1 by t is equal to 10. Now it is t square minus 10t plus 1 equal to 0. From here t is equal to 10 plus minus root over b square minus 4ac upon 2. So now t is equal to 10 plus minus 4 root 6 by 2. t is equal to 5 plus minus 2 root 6. अब स्टूडेंट ये चीज अगर आपको क्लिक होती है तो ये प्रॉब्लम आपसे बन गया. इसको लिख सकते हैं रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. टी आपका क्या था? टी है टी रूट 3 प्लस रूट 2 raised to the power x square minus 4. Right hand side root 3 plus minus root 2 raised to the power 2. So clear cut x square minus 4 एक बार 2 होगा और दूसरी बार माइनस 2 होगा. क्या ये स्टेप आपको समझ में आया? कंसीडरिंग पॉजिटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड पावर कंपेयर हो गई तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू टी. अब जब राइट में माइनस को कंसीडर किया रूट 3 माइनस रूट 2, लेफ्ट में रूट 3 प्लस रूट 2 है, राइट में रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो राइट वाले को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2. उसको जब ऊपर लाओगे तो पावर माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको दोनों तरफ की पावर कंपेयर करनी है तो बेस सेम बनाना होगा ना. कंसीडरिंग प्लस साइन डायरेक्टली पावर कंपेयर हो गई, बट कंसीडरिंग माइनस साइन पहले हमें बेस लेफ्ट जैसा बनाना होगा, देन पावर को कंपेयर करेंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज कमिंग व्हाट? 2 एंड माइनस 2. एक बार 2 को लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, एक्स की दो वैल्यूज आ गई. देन माइनस 2 को कंसीडर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2, एक्स की और दो वैल्यूज आ गई. टोटल हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स वी आर गेटिंग? 4. आंसर इज 4. एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछा गया था. देख लेते हैं इसका आंसर. यस 4. एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया था. इस तरह के प्रॉब्लम बोनस प्रॉब्लम कहलाते हैं. नथिंग स्पेशल वाज हियर. ओके चलिए, ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है इस लेक्चर का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टोटल प्रॉब्लम मेरे को मिले 10 प्रॉब्लम्स मिले, इंक्लूडिंग ऑल द शिफ्ट ऑफ जेई मेन 2023 जनवरी सेशन में. एंड आई होप ये प्रॉब्लम everyone can do with the help of graph of quadratic. A quadratic is given,
one root lie in the interval 1,2, other lie in 2,3. जल्दी से इस प्रॉब्लम को बनाओ, ग्राफ से बना सकते हो आप लोग। क्वाड्रेटिक की बात की जा रही है, रूट इन द इंटरवल 1,2 एंड अदर इन द इंटरवल 2,3। क्लियर कट ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड ग्राफ बनेगा। एक्स स्क्वायर हैज पॉजिटिव कोफिशिएंट, ग्राफ विल बी अपवर्ड। और कैसा अपवर्ड जाएगा? एक रूट बिटवीन 1 एंड 2 है और दूसरा रूट 2 एंड 3 है। फाइन, कुछ नहीं करना है। टू गेट दिस ग्राफ, 2 पे ग्राफ हर हाल में नेगेटिव होगा। एक रूट आपको 1 और 2 के बीच से ले आना है, दूसरा 2 और 3 के बीच से ले आना है। एट 2 graph will be negative, so we have to use one and only one condition, that is f of 2 less than 0। और f मैंने किसको माना है? f मैंने क्वाड्रेटिक को माना है। सो f2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 16 प्लस k लेस देन 0। सो k minus 8 less than 0, k less than 8. We have taken f2 less than 0. In parallel, we have to take these conditions also, f1 greater than 0 and f3 greater than 0. Now, f1 greater than 0, ये क्या देगा? It will give 2 minus 8 plus k greater than 0, which means k greater than 6. f3 greater than 0, तो 9 2 जा 18 minus 24 plus k greater than 0. So it is also giving k greater than 6. Fine. इन सबको आपस में क्लब कर दो। k greater than 6, k less than 8. So overall what about k? k in between 6 and 8. k in between 6 and 8. So how many integral values of k? K in between 6 and 8. So in the name of integer, k can be only and only k equal to 7. So how many integral values of k? Answer is option 1. देख लेते हैं पीछे आंसर क्या था? Yes, answer is option 1. Fine. So एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। If we go through graph of the quadratic, क्या हमसे बोला गया? वन इंटरसेक्शन बिटवीन 1 एंड 2, अदर इन बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 पे ग्राफ निगेटिव है, 1 पे पॉजिटिव है और 3 पे पॉजिटिव है। टेकिंग ऑल दीज कंडीशन, प्रॉब्लम इज इजिली डन। फाइन। सो स्टूडेंट्स, देयर वर टोटल 10 प्रॉब्लम्स ऑन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन in JEE Main 2023 January session, and I have completed all the 10 problems. Similarly, I will make video on other topics. तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, so that you can get timely update. Okay? Tata, bye bye, thank you.